पायल रोहतगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट यूपी पुलिस इन स्पेसिफिक एंड इंडियन पुलिस इन जनरल. Police in India is arresting educated people aggressively. We all cannot forget how Arnab Goswami was arrested aggressively. Similarly, Payal Rohatgi was arrested aggressively. Now, Amitabh Thakur is arrested aggressively. We all are educated people. Why is Indian police arresting educated people aggressively who understand that law and order का पालन करना पड़ेगा भारत के अंदर? अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा. एजुकेटेड पीपल नो दैट. तो अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज होती है, एफआईआर के अंदर एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना होता है. जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, you really don't know if the person is guilty or not, but you have to arrest the person because FIR has been filed. But why are the arrest aggressive? This is my question. ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अमिताभ ठाकुर की अरेस्ट मैंने देखी. He is a BTech graduate. I am a BTech graduate. He is from IIM Lucknow and he is an IPS officer of 1992 batch. Now Thakur would have retired in 2028 but his service was cut short in 2015. मतलब 2015 में वो forcefully retire हो चुके थे because he had accused समाजवादी patriarch मुलायम सिंह यादव of threatening him. तो ये अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट किया गया by UP police. Amitabh Thakur was arrested because a woman had lodged a rape case against jailed BSP MP अतुल राय on May 1st 2019. 2019 को BSP के MP के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ and this case was dodged in Lanka police station in Varanasi. The complainant and her companion had set themselves on fire outside the Supreme Court on August 16 after levying serious allegations against the police and other authorities including SSP Amit Pathak, retired IG Amitabh Thakur and a judge conspiring against her. A case was registered against Thakur in which retired IPS official was accused of provoking the woman for taking the extreme step. The UP police said that they arrested Thakur based on a complaint filed by the deceased victim on November 10, 2020. In her application to SSP Varanasi, the victim had alleged that Amitabh Thakur took money from BSP MP Atul Rai for tampering the evidence in the case. The Hasratganj police said Thakur was charged with abetment to suicide. The lady and her companion burnt themselves in front of the court and succumbed to their injuries. अब अमिताभ ठाकुर का क्या कहना है? उनका कहना है कि earlier also UP police had kept him in house arrest and Gomti Nagar police had arrived and told him not to step out from his house because there was security reason. अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी. अमिताभ ठाकुर सच है या वो गलत है ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी. मगर अमिताभ ठाकुर एक पढ़े लिखे भारतीय नागरिक है. अगर उनको पता चलता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वो एफआईआर की कॉपी मांगेंगे, अपने वकील से बातचीत करेंगे और उसके अनुसार स्टेप्स लेंगे. वो देश छोड़ के भागने वाले एजुकेटेड भारतीय नागरिक नहीं है क्योंकि रिटायर होने के बाद आज की तारीख में वो इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं एंड वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने कॉन्टेस्ट कर रहे हैं. तो यूपी पुलिस का ये बर्ताव, एग्रेसिव अरेस्ट ऑफ अमिताभ ठाकुर, which I had talked earlier also in my video where he was asking about the FIR copy or the notice, shows them in bad light and this affects योगी आदित्यनाथ जी जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो यूपी के एट प्रेजेंट के सीएम है. दरखास्त है यूपी पुलिस से और बाकी राज्यों की पुलिस से, एजुकेटेड लोगों को गिरफ्तार करना है तो आप करिए मगर डिसेंटली करिए क्योंकि एजुकेटेड लोग भागने वाले नहीं है पुलिस को देख के. मर्डरर्स, रेपिस्ट, आतंकवादी वो पुलिस को देख के भागते हैं, एजुकेटेड लोग पुलिस को देख के भागते नहीं है. दे कोऑपरेट विद द पुलिस. अब दूसरी ओर यूपी पुलिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर वो इनाम जारी कर रहे हैं उस इंसान के ऊपर जिसका नाम है विजय प्रजापति, जिसने एक 17 साल की बेटी को गोली मार के उसकी हत्या कर दी. एंड दिस गर्ल वाज काजल सिंह एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि काजल सिंह वाज रिकॉर्डिंग ऑन वीडियो द फाइट बिटवीन दिस प्रजापति गाय एंड हर फादर राजू नयन सिंह ऑन अ मनी रिलेटेड डिस्प्यूट. जस्ट बिकॉज शी वाज रिकॉर्डिंग ऑन हर मोबाइल शी वाज शॉट डेड इन abdomen by this guy Vijay Prajapati and he's absconding.
उसको पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने इनाम जारी किया है। वेरी गुड यूपी पुलिस, दिस मैन नीड्स टू बी अरेस्टेड। एंड इसको जब आप अरेस्ट करेंगे ना एग्रेसिवली, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसने पब्लिक व्यू में एक 17 साल की लड़की के पेट में गोली मार के उसकी हत्या कर दी। मगर अमिताभ ठाकुर के ऊपर जो इल्जाम है ना, वो इल्जाम अभी तक प्रूव नहीं हुए हैं। द लेडी ऑब्वियसली कमिटेड सुसाइड हु हैज पुट दीज एलिगेशंस, बट हर एलिगेशंस आर नॉट proven on public platform because there is no proof on public platform and these allegations need to be investigated. उनकी death हो गई, really sad to know about it, but you cannot kill another person, you cannot harm another person till he is proven guilty in the court of law as per Indian law. तो यहाँ पे अमिताभ ठाकुर को aggressively पकड़ना गलत था। पकड़ना ठीक है बिकॉज उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, मगर एग्रेसिवली पकड़ना गलत है। दूसरी ओर द मैन प्रजापति हु किल्ड अ 17-year-old गर्ल बिकॉज शी वाज जस्ट रिकॉर्डिंग हिम ऑन वीडियो बिकॉज ही वाज फाइटिंग विद हर फादर, दैट मैन नीड्स टू बी अरेस्टेड एग्रेसिवली, दैट मैन नीड्स टू बी किक्ड बिकॉज ही डिड समथिंग व्हिच इज hideous and he did it in public view. There are witnesses for it. In public view, in full view. What Amitabh Thakur did, that is behind the doors, if he did it, and that needs to be proven in the court of law. तो ये दो different examples देके अमिताभ ठाकुर and this man विजय प्रजापति, I just want to tell यूपी पुलिस, प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करिए सोशल मीडिया के जमाने में जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब हो, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चंस इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस कि क्या पुलिस इज कंट्रोल्ड बाय द सरकार दैट रन्स दैट स्टेट। यस, ये थॉट मेरे दिमाग में भी आया कि डज द स्टेट पुलिस रन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये सवाल हर भारतीय के जहन में आता है विद द बिहेवियर लाइक दिस ऑफ द पुलिस। प्लीज वर्क इंटेलिजेंटली, प्लीज वर्क इंडिपेंडेंटली, बिकॉज माय रिक्वेस्ट टू द पुलिस in UP is please don't do this in the times of social media. I know you are pressurized. I know it is very difficult to maintain law and order. I know you have to catch a lot of culprits, but don't do this with educated people because it makes you look in the bad light. Namaste. Jai Hind.